جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ میرے پیارے نبی کے ذکر سے اگر ہم پیار نہیں کریں گے تو کون پیار کرے گا؟ اس لیے کہ اسی نبی کے ذکر کی برکت تو ہے آج آسمان سلامت ہے، اسی نبی کے ذکر کی برکت تو ہے کہ زمین سلامت ہے، اسی نبی کے ذکر کی برکت تو ہے کہ آج ہمارے آنکھوں میں روشنی موجود ہے، اسی نبی کے ذکر کی برکت تو ہے کہ آج ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، یہی نبی کے ذکر کی برکت تو ہے کہ آج جو ہے ہم دنیا میں چہچہاتے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ یقین جان لیجئے جب تک نبی پیارے اس دنیا میں نہیں آئے تھے حالات اس قدر بدتر ہو چکے تھے کہ کوئی انسان سورج کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا، کوئی انسان چاند کے چاندنی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا، کوئی انسان سمندر کے سیلانی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا، لیکن ہزاروں رحمتیں نازل ہو اے آمنہ کے لال تیرے تربت انور پر جب مصطفیٰ جانے رحمت آ گئے، جب حضور نے یہ دیکھا کہ لوگ اس قدر بدتر حالات سے گزر رہے ہیں کہ کوئی انسان سورج کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی انسان چاند کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، حضور نے یہ کہا تھا اے لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم سورج کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو؟ سورج تم سے بڑا نہیں ہے بلکہ تم سورج سے بڑے ہو، تمہارا اوتار سورج سے زیادہ ہے، تمہارا رتبہ سورج سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اوتار سورج سے زیادہ ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سورج سے بڑے ہیں؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جو ہے اپنی انگلی مبارک کے اشارے کے ذریعے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم کے انگلی کے اشارے کے ذریعے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا تب دنیا کے لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ مان گئے یہ سورج چھوٹا بن کر کے آیا ہے، آمنہ کا سورج بڑا بن کر کے آیا ہے، مان گئے یہ سورج چھوٹا بن کر کے آیا ہے، آمنہ کا چاند بڑا بن کر کے تشریف لایا ہے۔ حضرات جب مصطفیٰ آنے کے بعد جو ہے لوگوں کو خدا کی وحدانیت سے قریب کر کے لوگوں کو روشناس کیا ہے، تب لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے۔ آج اگر ہم حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جہاں ہم جلسہ ہر روز کرتے ہیں، جہاں ہم جلسہ سننے سنانے کے بڑے شوقین ہیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کریں۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی پرانا تھا، برسوں سے نمازی نہ ہو سکے۔ حضرات یقین جان لیجئے مسلمانوں کے بستی میں جائیے، مسجدوں میں جائیے تو آپ جو ہے جاتے ہوئے خون کے آنسو روئیں گے کہ جس گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تعداد ہے لیکن وہاں پنج وقتہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بالکل نہ کے برابر ملے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے کیا یہی وجہ کیا صرف جو ہے جلسہ کرنے کرانے سے ہمارا کام چل جائے گا؟ نہیں رہی میرے پیارے۔ آج اگر اس جلسے میں آتے ہوئے آپ یہ ارادہ لے کر کے اٹھیں گے، آپ یہ ارادہ لے کر کے اپنے گھروں کو چلیں گے کہ اس سے پہلے ہم بے غفلتی کی وجہ سے جو زندگی گزار چکے وہ گزار ہوئے، لیکن آج کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے گاؤں کے مسجد کو آباد کریں گے اور اپنے گاؤں کے مسجد کو نمازیوں کے ذریعے آباد کریں گے۔ تو خدا کی قسم اگر آپ کا یہ تیور ہوتا ہے، اگر آپ کا یہ حوصلہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر یہ بیداری ہوتی ہے تو یقین جان لیجیے اس طرح کا جلسہ سجانا بھی کامیاب ہو جائے گا، اس طرح کے جلسوں میں خرچ کرنا بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس طرح کے جلسوں میں آ کر کے علماء کرام کے تقریر کو سننا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آپ اگر جو ہے اپنے گاؤں کے مسجد کو آباد کر کے ان جلسوں میں آ کر کے اپنا یہ تیور بناتے ہیں جو تیور ہمیں بریلی کے امام دے گئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہوگا میرا بھائی تم کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی مناظر حسین صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میرے پیارے میں نے قرآن شریف کی بہت مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ آج ذرا دیکھا جائے، آج جو ہے یعنی سماجی اعتبار سے دیکھا جائے یا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آخر مسجدوں کو ہم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گاؤں میں جو ہمارے گھر میں جو ہے
नमाज पढ़ने का कोई दीनी माहौल नहीं है, फिर हम ये कहते हैं कि हम बड़े तरक्की कर रहे हैं, हम बड़े कामयाब हो रहे हैं। आज लोग अगर घर बनाते हैं, उस घर में एक टीवी रूम के जो है, एक टीवी रूम के एतबार से एक कमरा बनाने के लिए अलग एतबार से यानी वो तजवीज पेश करते हैं, वो एक कमरा जो है मेहमानों के लिए अलग तौर पर बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, जहाँ गौरों को देखा जाए, जो लोग यानी झूठे खुदा की इबादत करते हैं, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, उनके यहाँ जब कोई घर बनता है, जब उनके यहाँ कोई मकान बनता है, वो एक छोटा सा कमरा इलाहदी तौर पर जो है कायम किया करते हैं। इलाहदी तौर पर वो एक कमरा बनाते हैं, जिस कमरे में वो भूतों को रखा करते हैं और सुबह शाम जो है वहाँ पे पूजा पाठ जाकर के किया करते हैं। ये काम तो हमें करना चाहिए। अगर हम अपने घर में मस्जिद के तौर पर एक कमरा बना दिए और अपने बच्चों को बताना शुरू किए कि हमारे जिंदगी में जो सबसे यानी अहम मरहला है वो कोई और मरहला नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की इबादत का मरहला है। अगर हम इस मरहले से अपने आप को करीब करते हैं, अपने बच्चों को कामयाब करते हैं, अपने बच्चों को करीब करते हैं, तो यकीन जान लीजिए फिर जो है मकसद के साथ जिंदगी गुजारने का हल हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, हमें ये ख्याल नहीं आता है, हम अपने दिल में ये नहीं सोचते हैं, हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं आखिर ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी कब फना हो जाए ये कभी नहीं कहा जा सकता है। बड़े बड़े नामवर आए जो इस दुनिया से चले गए, जो यानी जब मौत का झटका आता है, जब मौत का वक्त आता है, हजारों कोशिश के बाद, हजारों जो है दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान करने के बाद जब मौत का झटका आ जाए, उस वक्त एक मिनट की मोहलत आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, आखिर हमारा दिल इस कदर संग दिल कैसे हो चुका, आखिर मेरा पत्थर दिल कैसे हो चुका, जबकि मेडिकल साइंस की नई रिसर्च है, मेडिकल साइंस की नई तहकीक है। आज के जमाने में आप मोतियाबिंद के जो है यानी आपके अस्पतालों का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बड़े करीब से समझाना चाहता हूँ, पहले के जमाने में लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत इतनी नहीं होती थी। 15 साल 20 साल पीछे चले जाए, अगर आप तो मुश्किल किसी को आप ये देखते होंगे कि जिसकी नजरें काम करना बंद करती हो, जिसके नजरों में धुंधलाहट यानी धुंधलापन आ चुका हो, धुंधलापन की वजह से वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जा रहे हो या वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा रहे हो। लेकिन आज के डेट में आपके अस्पतालों का जायजा लीजिए, हजार नौजवान से लेकर के बूढ़े तक यानी मोतियाबिंद और दिगर आंख के मामले में ऑपरेशन के लिए जो है अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जरा देखा जाए, मेडिकल साइंस का कहना है कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा आंख के ऑपरेशन कराने की नौबत इस वजह से आ गई है कि अब जो है आंखें सूख चुकी है। इसकी वजह यह है कि आज हमारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं, आंसू नहीं आने की वजह से हमारी आंखें सूख गई है। जब आंखें सूख जाती है फिर जो है नजरें काम करना बंद कर देती है, फिर जो है ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। मेरे प्यारे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज वजह यह है कि हम इतने संगदिल हो चुके हैं। पहले के जमाने में अगर एक रिश्तेदार को विदाइया तौर पर, अलविदाइया तौर पर एक रिश्तेदार से रुखसत होता था तो सीने से सीने लगा करके, दिल से दिल मिला करके, सीने से सीने लगा करके वो रोता रहता था कि यार आज के बाद तुम मुझसे रुखसत हो रहे हो। अगर एक भाई से रुखसत होता था वो गले से गले मिला करके रोता था। एक माँ अगर एक बेटे से रुखसत होती थी गले से गले मिला करके रोती थी, बेटा रोता था। लेकिन आज हालात ये है कि किसी की मुसीबत में रोना तो दूर के बाद, किसी के गम में रोना तो दूर के बाद, किसी के दुख में रोना तो दूर के बाद, आज अगर हम अपने सगे भाई को कब्रिस्तान में जो है यानी रुखसत करने के लिए जाते हैं, जब मेरा सगा भाई का इंतकाल होता है, जब मेरे सगे भाई का जनाजा होता है, उस कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद भी अल्लाह
रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, रिफत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब किबला के मिलती है क्या नमाज में, सर को झुका के देख, होगा खुदा का सामना, सजदे में जाके देख। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी रात के 12:30 नहीं बजे हैं कि आप लोगों का ये हाल है। 1 बजे के बाद जब मुफ्ती साहब आएंगे तो इसका मतलब सब लोग चले जाएंगे। तो भाई आप बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, कुछ पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? जरा दोनों हाथों को बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इतने जोर से बोले या रसूल अल्लाह जिनको नींद आ रही है उनकी नींद खत्म हो जाए। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के खौफ की वजह से आज हमें रोना नहीं आता है, अल्लाह के डर की वजह से आज हमें रोना नहीं आता है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है, खुदा पाक का खौफ नहीं होने की वजह से आज हम जो है बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। वरना यकीन जान लीजिए, जो दानिश्वर होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, वो अपने दुनिया की फिक्र करे या न करे, आखिरत की फिक्र करते हुए नजर आते हैं। आप एक दाना, हजरत बहलुल दाना के बारे में वो रिवायत सुनी होगी, यकीन जान लीजिए, हजरत बहलुल दाना जब कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है। बादशाह हारून रशीद बहलुल दाना से कहते हैं, बहलुल यार अजीब बड़े पागल हो, हमेशा कब्रिस्तान में ही बैठे रहते हो, यार अभी कब्रिस्तान से बाहर निकलो, आओ देखो हमारे शहर का मुआयना करो, शहर की आबो हवा देखो, शहर में कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, उसके जो है नकूश देखा करो, उसके माहौल को देखा करो। हजरत बहलुल दाना का जवाब सुनिए। हजरत बहलुल दाना कहते हैं, बादशाह मैं तेरे शहर का क्या मुआयना करूं, जबकि तेरे शहर का एक आदमी अपना बसेरा यही आकर के बना रहा है, इसलिए मैं अपने वक्त से पहले अपने रब को राजी करने के लिए कब्रिस्तान में बैठा रहता हूं कि रब अगर आज रहती दुनिया में मेरे खताओं को माफ कर दिया और मेरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया तो हमारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, हमारी आखिरत भी आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, इस कॉन्फ्रेंस में आने का एक मकसद आप पैदा कीजिए कि यहाँ से उठने से पहले, यहाँ के जाने से पहले आप अपने अंदर तब्दीली लाना है, आप अपने अंदर चेंजिंग लाना है, आप अपने अंदर बेदारी लानी है। आपको ये सोचना है कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो ये दुनिया पानी होने, ये दुनिया हमें छोड़ करके एक दिन जाना है। जब जाना है तो वहां के लिए हमारे पास तैयारी क्या है? हम अपने रब के लिए रोते क्यों नहीं है? अल्लाह के खौफ में आंसू बहाते क्यों नहीं है? जबकि वो रिवायत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब 7 साली का जमाना आता है, इंसान तो इंसान, जानवर जब परेशान हो जाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर के एक मैदान में जमा होते हैं कि चलो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे, रब की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग करके रब से रहमत की बारिश होने की दुआ मांगेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर के एक मैदान में जमा होते हैं। मैदान में जमा होने के बाद दुआएं करते हैं, मेरे परवरदिगार, इंसान तो इंसान, जानवर तक परेशान हो गए हैं, मौला बारिश नहीं होने की वजह से जमीन खुश्क हो गई है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू आसमान से बारिश नाज़िल नहीं करेगा तो इंसान भी मरते हुए नजर आएंगे, जानवर भी परेशान है। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने बंदों पर रहम फरमा, मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मान जा, आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल कर दे। हजरत मूसा दुआ करते जाते हैं, रोते जाते हैं, गिड़गिड़ाते जाते हैं कि अचानक हजरत मूसा के पास अल्लाह की तरफ से वही आती है और उस वही के जरिए हजरत मूसा को ये बताया जाता है, ऐ मूसा, तुम जो इतने लोगों को, सारी कौम को लेकर के मुझसे दुआएं मांगने के लिए आए हो, इसी पूरे मजमे के अंदर, इसी सारे कौम के बीच कोई एक इतना बड़ा नाफरमान मेरा बंदा है जिसने 40 साल तक मेरी कोई इबादत नहीं की है, जिसने 40 साल तक मेरी एक बात नहीं मानी है। ऐ मूसा, अगर उस नाफरमान बंदे को इस मजमे से निकाल दिया जाएगा, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी और आसमान से मैं परवरदिगार बाराने रहमत का नुज़ूल कर दूंगा, बारिश बरसा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मजमे से मुखातिब होकर कहते हैं, कौन है रब का वो नाफरमान बंदा, जल्दी से निकल जाए। हजरात, पता तो होता है इंसान को कि कौन कितना बड़ा जालिम है, पता तो होता है इंसान को
कि मैं गुनाहों के दलदल में पड़ा हूँ या नहीं पड़ा हूँ। ये और बात है कि हमारे अयूब छुपने की वजह से, हमारे ऐब जो है छुपने की वजह से हम अपने आप को बड़े नेक कहलाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम बड़े नेक हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारों, हम सबको आजिज़ी में जिंदगी गुजारनी चाहिए, इनकिसारी में जिंदगी गुजारनी चाहिए, और आजिज़ी और इनकिसारी में जिंदगी गुजार करके अपने आखिरत की जिंदगी को जो है यानी ताबनाक बनाने की जरूरत है। जरा देखा जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये कहते हैं, कौन है रब का नाफरमान बंदा जिन्होंने 40 साल तक रब की एक भी बात नहीं मानी है, जल्दी से वो मजमे से निकल जाए। हजरात, अब वो इंसान जो बड़ा गुनहगार था, जिन्होंने 40 साल तक रब की एक बात भी न मानी थी, रब को एक सजदा भी नहीं किया था, अब वो दिल ही दिल में अपने रब से कहता है, मेरे परवरदिगार 40 साल तक तू मेरे ऐब पर पर्दा डालता रहा, आज अगर मैं इस मजमे में सरेआम जलील किया जाऊंगा, सरेआम मेरी अगर रुसवाई होगी, तो ऐ मेरे परवरदिगार मैं मेरे बच्चों के लिए जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम फरमा, आज मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा का ऐलान होता है, कौन है वो रब का नाफरमान बंदा, अगर तू नहीं निकलेगा तो मैं अल्लाह से नाम पूछ करके, नाम दे करके तुझको इस मजमे से निकालूंगा। हजरात, अब वो इंसान जैसे ही इस ऐलान को सुनता है, वो गुनहगार बंदा जैसे ही इस ऐलान को सुनता है, वो रब की बारगाह में कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार 40 साल तक जब तुम मेरे ऐब पे पर्दा डालता रहा, ऐ मेरे परवरदिगार आज अगर इस सरेआम इस महफिल में सरेआम में जलील किया जाऊंगा, सरेआम में बेइज्जत किया जाऊंगा, तब तो जमाना मेरे बच्चों को जलील करेगा, जमाना मेरे बच्चों पर ताना मारेगा, जमाने में मेरे बच्चों को जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए है मेरे परवरदिगार, मैं सच्चे दिलों से अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। हजरत इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि वो इस दर्द के साथ रहता है, वो इस कैफियत के साथ रहता है कि अपने आंख से आंसू के निकले हुए कतरे को अपने बगल वाले शख्स को भी देखने नहीं देता है कि कहीं अगर ये मेरे आंख से निकले हुए आंसू के कतरे को देख लेगा तो शायद ये समझ जाएगा कि यही सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है। इसी के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर रब की बारगाह, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, जल्दी से निकल जाए वरना उसका नाम लेकर के इस मजमे से निकाला जाएगा। हजरात, इतने ही तक जो है, जब तक ये ऐलान हुआ ही था कि वो अल्लाह का नाफरमान बंदा अपने दिल ही दिल में रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, कहता है, मेरे परवरदिगार इतने दिनों तक तू मेरे ऐब पर पर्दा डालता रहा, है मेरे परवरदिगार इन सारे लोगों के सामने आज मुझे रुसवाई से बचा ले, आज मुझे जलील होने से बचा ले। है मेरे परवरदिगार, आज मैं अगर जलील होने से बच गया तो आज के बाद मैं फिर कभी गुनाह नहीं करूंगा, फिर मैं आज के बाद कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तेरी हर बात मानूंगा। है मेरे परवरदिगार, मान जा, मुझे माफ फरमा दे। अब वो इतने दर्द के साथ रोता है, वो इतने कर्ब के साथ रोता है, वो इस कदर शिद्दत के साथ रोता है, रब से इस कदर दर्द के साथ माफी मांगता है कि आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी ये ऐलान फरमाई थे कि आसमान से जमादम बारिश होने लगती है, बारिश के कतरे बरसने शुरू हो जाते हैं। हजरत मूसा रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो झूठ बोलने से बात है, तू तो झूठ नहीं बोलता है, तू तो ये कहता था कि जब तक वो नाफरमान बंदा इस मजमे से निकलेगा नहीं तब तक मैं परवरदिगार बारिश नहीं बरसाऊंगा। लेकिन है मेरे परवरदिगार, अब तक तो कोई भी शख्स इस मजमे से निकला भी नहीं, लेकिन तू बारिश भी बरसा दिया, तू बारिश भी अदा कर दिया। है मेरे परवरदिगार, आखिर तेरी कुदरत का क्या करिश्मा है। तब परवरदिगार का इरशाद होता है, ऐ मूसा, जिस नाफरमान बंदे की वजह से मैं बारिश नहीं बरसा रहा था, अब उसी नाफरमान बंदे की वजह से मैं परवरदिगार बाराने रहमत का नज़ूर कर दिया हूँ, आसमान से बारिश बरसा दिया हूँ। ऐ मेरे मूसा, उस बंदे ने दिल ही दिल में मेरे साथ जब सुलह कर लिया है, मैं परवरदिगार उसके जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा कर उसके तौबा को कबूल कर लिया हूँ। उसने कितने सच्चे दिलों से तौबा किया है कि उसने तौबा की बरकत से मैं परवरदिगार आसमान से बारिश बरसाना शुरू कर दिया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, रिफात मुस्तफा, फैजाने गुंबदे खजरा,
अल्लामा मुनाजिर हुसैन छपरवी। इसलिए मेरे प्यारे, अगर हम भी अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं, यकीनन अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं, तो हमें भी अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, हमें भी अपने आमाल का हिसाब लगाना चाहिए कि हम और आप भी अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करें, रब की इबादत का शौक पैदा करें। लेकिन आज के डेट में होता यह है कि आज के डेट में हम जैसे बाप बेनमाजी हो करके अगर हम ये शौक पैदा करेंगे कि मेरे घर में मेरे बच्चे नमाजी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिसका बाप बेनमाजी, जिसकी माँ बेनमाजी, फिर अगर वो ये ख्वाहिश करे कि मेरे बच्चे नमाजी हो जाए, मेरे बच्चे दीनदार हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि फर्ज नमाज आप मस्जिद में पढ़ें, सुन्नत नफल आप अपने घर में आकर के बच्चों के सामने पढ़ा करें, ताकि बच्चे ये समझ पाए कि ये भी कोई चीज है। कुरान की तिलावत आप अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने करें, ताकि बच्चे जब आपको कुरान की तिलावत करते देखेंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि हाँ ये भी कोई चीज है। इसलिए हम मेरे प्यारे, हम अपने मकान का वारिस बना देते हैं, हम अपनी दुकान का वारिस बना देते हैं, हम अपनी जमीन का वारिस बना देते हैं, लेकिन हम और आप भी गौर करते हैं क्या हम कब्र के लिए भी कोई वारिस बनाते हैं जो हमारे कब्र में जा करके सुबह शाम मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। हम कब्र के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम आखिरत के मंजिल के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा लगता है कि जो होगा वहां देखा जाएगा। नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जिनका लक़ब ज़ुन्नुरैन है, यानी हुजूर की दो बेटियां हज़रत उस्मान के निकाह में है। हज़रत उस्मान के बारे में आया है किताब में कि हज़रत हदीस में कि हज़रत उस्मान को मेरे आका ने अपनी रहती हुई दुनिया में, अपनी रहती हुई जिंदगी में दो बार जन्नती कहा है। अब ये बताएं, जिसको हुजूर अपनी ज़ुबान मुबारक से दो बार जन्नती कहते हैं, उसके जन्नती होने में कोई शक है? नहीं, कोई शक है। लेकिन खुदा की कसम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी मोमिन के कब्र में जाते थे, इतना रोते थे कि उनकी पूरी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। पूछने वाला शख्स कोई हज़रत उस्मान से पूछता था, ए उस्मान, हुजूर ने तो आपको जन्नती कहा है, हुजूर ने तो आपको जन्नती कहा है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप कब्र को देख करके इतना क्यों रो रहे हैं? हज़रत उस्मान कहते हैं कि यकीनन हुजूर ने मुझे जन्नती कहा है। जिस हुजूर ने मुझे जन्नती कहा है, उस नबी ने मुझे ये भी कहा है कि उस्मान, आखिरत के मंजिल की फिक्र किया करो, कब्र के मंजिल की फिक्र किया करो। अरे तुम उस्मान के बेपरवाह होने की बात करते हो। अगर उस्मान किसी ऐसे कमरे में होता है जिसमें चिराग का इंतजाम न हो, जिसमें रोशनी का इंतजाम न हो, उस्मान को तो जो है उस अंधेरे कमरे से भी डर लगने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे, आज हम ये सोचें कि आखिर हमें भी तो उस अंधेरे वाले कोठरी में जाना है, हमें भी उस कब्र में जाना है। क्या हमारे लिए कोई रोशनी का इंतजाम है? क्या हम अपनी रहती हुई दुनिया में रोशनी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं? इसलिए मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए, अपने बच्चों के साथ अंदाज़े तरबियत अपनाइए। जब आप अपने बच्चों के साथ अंदाज़े तरबियत अपनाएंगे, आप अपने बच्चों को तरबियत की भट्टी से गुजारेंगे, तो यकीन जान लीजिए आपका बच्चा पूरा बने या न बने, आज के डेट के लोगों को दुनिया पढ़ाने का बड़ा शौक है। यकीन जान लीजिए आज के डेट में, आज के जमाने में वो माएँ नहीं है जो माएँ अपने बच्चों को आज के डेट में स्कूल के टाइम पे सुबह सुबह ये कहती भी नजर तो आती है कि जल्दी से उठ जाए, स्कूल का टाइम हो गया। खुदा की कसम, अगर माएँ अपने बच्चों को जो है सुबह सवेरे उनके बालों पर हाथ फेरते हुए ये कह दे, मेरे बेटे उठ जाओ, नमाज का टाइम हो गया है, माँ ये कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारे बाप से मैं बोल दूंगी। अगर माँ ये कह दे कि अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे बाप से बोल दूंगी। अब वो माँ न रही। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपने कब्र के मंजिल की फिक्र करते हुए अपने औलाद को तरबियत के अंदाज से इस कदर गुजारिए, उनके साथ तरबियत का अंदाज इस तरीके से अपनाइए। आप जो दुनिया पढ़ाते हैं तो दुनिया पढ़ाने के लिए मना नहीं है, यकीन जान लीजिए आप दुनिया पढ़ाइए, लेकिन एक बात याद कर लीजिए कि आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपके कब्र पे जाकर के फिजिक्स में ही नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, अलजबरा के मसले हल नहीं करेगा। चाहे आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के हिसाब से ये वाला इल्म दें, लेकिन इन इल्मों से पहले, इस तालीम से पहले वो वाला इल्म आप अपने बच्चों को जरूर दे दें कि अगर आपका बच्चा आपके कब्र पर बैठ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपके कब्र को रोशन फरमा दे। अल्लाह आपके कब्र में रोशनी का तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तामीर मस्जिद। जरा जोर से बोलिए, जोर से।
اور जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपनी दुनिया को भी बनाइए, अपनी आखिरत को भी बनाइए। अपनी आखिरत को बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों के जहां दुनिया की फिक्र कीजिए। हर बाप जहां आज के डेट में ये सोचता है अगर मैं चला गया, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन कोई बाप ये नहीं सोचता है कि अगर हमने अपने बच्चों को दीनी प्लेटफार्म से जो है गुजार करके उनके साथ बेहतरीन अंदाज़े तरबियत नहीं अपनाया तो यकीन कर लीजिए मेरे बच्चों की आखिरत कैसी होगी। जाहिर सी बात है, जहां हम अपने बच्चों के आखिरत के बारे में मुतफक्किर नहीं होंगे वहां मेरे बच्चे कैसे कामयाब और कामरान होते हुए नजर आएंगे। आज जरा देखा जाए बुराई किस कदर तूफान पर है, बुराई किस कदर जोरों पर है, जो हमें हश्र की याद नहीं, हमें आखिरत की याद नहीं, हमें कब्र की याद नहीं, बल्कि इन सारी यादों से हम बेखबर होकर के सिर्फ दुनिया कमाना, दुनिया में तरक्की हासिल करना, मकान बनाना, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना, जमीन जायदाद के लिए मुतफक्किर होना कि 22 में हमने एक प्लॉट खरीद लिया, अब पूर्णिया में एक प्लॉट लेना है, पूर्णिया में अगर वो जो है यानी एक जमीन हमने खरीद ली तो किसी तरीके से अब हमें राजधानी पटना में भी जमीन खरीद ली है। यानी इन जैसे हवस की वजह से आज हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यकीन जान लीजिए जब मौत का झटका आता है फिर वो इंसान बच नहीं पाता है। आपने सुना होगा वो सिकंदर आजम, जिस सिकंदर आजम को जो है तारीख ने ग्रेट का लक़ब दिया था, जिसके बारे में लोग ये कहते थे ये आदमी बड़ा लकी आदमी है, ये मकनातीसी आदमी है, वो सिकंदर आजम जिसके बारे में आया है तारीख में, जिन्होंने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया को फतह कर लिया था। हज़रात वो सिकंदर आजम मुल्तान से जब गुजर रहा था तो एक तीर लगा, जैसे ही एक तीर लगा सिकंदर आजम ने कहा था पता करो किसकी इतनी जुर्रत, किसकी इतनी हिम्मत जिन्होंने मुझे तीर मारा। हज़रात लोग जो है हजारों तलाशों जुस्तजू के बाद वो आदमी न ढूंढ पाए। सिकंदर आजम का हुक्म होता है कि आदमी ढूंढो, अगर आदमी न मिल पाए तो हर चमकती वाली आंख को बंद करो, जिनकी आंखें चमक रही है सारे लोगों को कत्ल करना शुरू करो। हज़रात नौजवान भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए, बूढ़े भी मारे गए, सिकंदर आजम के हुक्म से बिल्लियां भी मारी गई, कुत्ते भी मारे गए। जब सारे आदमी को मार दिया गया, आदमी न मिला, लोगों ने आकर के कहा कि अब आदमी नहीं बचा है। वो सिकंदर आजम एक दिन जो है यानी वो यूनान का रहने वाला सिकंदर आजम बाबुल, इराक के बाबुल शहर से गुजर रहा था। मलेरिया बुखार पकड़ता है, उस मलेरिया बुखार की वजह से वो सिकंदर आजम जमीन पर बैठ जाता है, अपने पैर के एड़ियों को रगड़ता है और रगड़ने के बाद कहता है कोई है जो मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दे दे और वो मुझसे सारी सल्तनत ले ले, वो मुझसे सारी दौलत ले ले। मैं परदेश में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं घर में मरना चाहता हूँ। कोई है जो मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने घर में मरूं, ताकि मैं अपने घर वालों के बीच मरूं। लेकिन है मेरे प्यारे, जब मौत का झटका आता है फिर कोई बच नहीं पाता है। जब मौत का झटका आता है फिर किसी तरीके से मोहलत नहीं मिलती है। जब मौत का झटका आता है फिर वो इंसान तड़प तड़प करके मरता है। इसलिए अल्लाह कभी अगर दौलत दे दे तो कारून बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कभी अगर खजाना दे दे तो नमरूद बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर कभी शोहरत दे दे तो इतराने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये किसने तुझे कह दिया है कि दौलत मिलने के बाद घमंड किया जाता है? ये किसने तुझे कह दिया है कि दौलत मिलने के बाद इंसान की बोली बदल जाती है, दौलत मिलने के बाद इंसान का लहजा बदल जाता है, दौलत मिलने के बाद इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है? नहीं मेरे प्यारे, दौलत मिलने के बाद एक मुस्तफा के आशिक का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दौलत मिलने के बाद अपनी पेशानी को सजदे शुक्र अदा करने के लिए रब की बारगाह में झुका दे और रब की बारगाह में ये फरियाद करे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा किया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे नवाजा है, आज तेरी बारगाह में हम सजदे शुक्र अदा करते हैं। अगर आपका ये अंदाज होता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रगुजार बन जाओगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हारी दौलत को बढ़ाते रहेंगे। यकीन जान लीजिए, दौलत मिलने के बाद, इज्जत मिलने के बाद, शोहरत मिलने के बाद अगर एक बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा करे तो खुदा की कसम जिंदगी का एक दिन गुजरता जाएगा, अल्लाह उसके दौलतों में इजाफा करता जाएगा। अल्लाह उसके दौलतों में नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह उसके दौलत में इजाफा करता जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप और हम जो है अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम जो है आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के लिए कुछ ऐसा काम किया करें जिस काम के ऊपर जो है अल्लाह के फजल से हमें भरोसा हो कि हम जो है इन नेक काम की वजह से बख्शे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, यहाँ हमारी जिंदगी के में कुछ ऐसे नेक अमल नहीं है, लेकिन न जाने किन बेतवज्जही के शिकार हो गए कि हम जो है आखिरत की याद में नहीं रोते हैं, आखिरत के फिक्र में नहीं रोते हैं, आखिरत में जो है यानी अपना जो है अपने बारे में हिसाब के लिए सोच के नहीं रोते हैं। यही वजह है कि हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। आज हमारे जो है गांव में मस्जिदों का जायजा लिया जाए तो यकीन जान लीजिए, खास करके हमारे इधर सीमांचल के इलाके में ये बात आप ज्यादा देखेंगे कि बमुश्किल देखने से भी 2-4 नमाजी एक वक्त की नमाज में नहीं मिलेंगे। फिर क्या फायदा है आपको इन जलसे जुलूस के कराने का? ये जलसा एक दीनी प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म के जरिए बैक वक्त बहुत सारे लोगों को दीन इस्लाम के जो है करीब किया जाता है। आप अगर करीब नहीं होंगे, फिर इन जलसों में आने के बाद आपके दिमाग में वही वाहवाही हो, वही फिक्र हो, वही आवारगीपन हो, वही जो है यानी बिल्कुल आप जो है आवारा ख्याल लेकर के आए, फिर जैसे आप जिंदगी गुजारे थे वैसे जिंदगी गुजारने के आदी बन जाए। तो मेरे प्यारे, कुछ हाथ नहीं आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रहती हुई दुनिया में आखिरत के लिए कुछ काम करें, तो इन जलसों में आकर के इन जैसे उलमाए किराम के बयान को सुन करके आप अगर अपने जिंदगी में तब्दीली लाएंगे, अपनी जिंदगी में बेदारी लाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार न हो जाए। और यकीन जान लीजिए, जब हम अपनी हालत बदलने को तैयार हो जाएंगे, जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम अपने आप को हुजूर की सीरत के सांचे में ढालने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम अपने आप को सही माना में मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह का फज़ल हमारी जिंदगी में जब शामिल हो जाए, तो यकीन जान लीजिए हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। हम अपने गांव के मस्जिदों को आबाद करें, अपने गांव के मस्जिदों में जो है हम जो है बेहतर से तरीके से हर एतबार से जो है यानी ज़ेबो ज़ीनत लेकर के अपने मस्जिद में जा करके जो है थोड़ी देर के लिए रब को मनाने के लिए जब जमा होंगे, अल्लाह के घर में अल्लाह के घर का वास्ता दे करके अल्लाह के करम से जो है जब उसके करम की भीख मांगेंगे, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला हमारे उठे हुए हाथों की लाज फरमाएगा। वक्त ज्यादा नहीं है, काशी सीमांचल मेरे बीच तशरीफ रखते हैं, चूंकि मेरे बाद इनका खिताब होना है, वरना बहुत ज्यादा देर तक अगर काशी सीमांचल खलीफा हुजूर ताजुश शरिया जो हमारे सीमांचल के लिए एक बहुत बड़े सरमाया है, अगर हम उनको बिठा करके बहुत देर तक आपसे हम कलाम होते हैं, तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए काशी सीमांचल की मौजूदगी में मैं पूरे फलसा के लोगों से और वो जवार के आए हुए मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो इस फलसा गांव के मस्जिद के तामीर और तौसीक के लिए सिर्फ गौसे पाक के नाम पर 1100 रुपए मुझे देने के लिए काशी सीमांचल के नाम पर तैयार होते हैं। 1100 रुपए। कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, मस्जिद को खूबसूरत बनाने के लिए, मस्जिद में बेहतर तरीके से यानी हर इंतजाम मुहैया करने के लिए सिर्फ 1100 रुपए का मैं सवाल किया हूँ। कितने रुपया का? 1100 रुपया। क्या कोई अल्लाह का नेक ऐसा बंदा नहीं है? अल्लाह का कोई ऐसा नेक बंदा जिसके दिल में अल्लाह के घर की मोहब्बत हो, जिसके दिल में माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। क्या नाम हो भाई? मोहम्मद हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब अली रहमतुल रिजवान के साहबजादे। माशाअल्लाह, यकीन जान लीजिए जिसके वालिद के अंदर वफा हो फिर उनकी औलादों के अंदर वफाएं होती है। फिर यकीन जान लीजिए जो बच्चे जो गार्जियन जो वालिद अपने बच्चों को तरबियत के भट्टी से गुजारते हैं, तो उनके जरिए फिर इन्हीं जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, इन्हीं जैसे बच्चे वजूद में आते हैं। जनाब हजरत मौलाना अलाउद्दीन मरहूम साहब किबला के साहबजादे ने 1100 रुपए से 2057 किया है, और 1100 रुपए मेरे एक भाई माशाअल्लाह 2000 रुपए
मोहम्मद इफ्तिखार साहब पलसा ने 2000 रुपए से अल्लाह कबूल फरमाए, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस ताउन की बरकत से उनकी कमाई में, उनके रोजगार में खूब खूब बरकतें नाज़िल अता फरमा। मौला उन्हें खूब खूब तरक्की के रास्ते पर गामज़न अता फरमा। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हम जो है रोजाना कुछ न कुछ रुपए अपने जो है परिवार के पीछे, अपने दोस्तों अपने फैमिली के पीछे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों के पीछे पैसे हुए खर्च, दोस्तों के पीछे यानी खर्च किया हुआ पैसा वो हमें काम आए। लेकिन यकीन जान लीजिए अगर हम अल्लाह के घर के तामीर के लिए, अल्लाह के घर के तामीर और तौसीक के लिए अगर 1 रुपया भी अपने जेब खास से ताउन करते हैं तो यकीन जान लीजिए अगर आप सच्चे नीयत से सिर्फ दिल से 1 रुपया भी अल्लाह के घर के लिए देते हैं, उस 1 रुपये के वसीले से अल्लाह दोनों जहां की कामयाबी आपको अता फरमाएगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 11,000 रुपया या 15,000 रुपया का मैं मुतालबा किया हूँ। अरे माशाअल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मिनहाज साहब गिट्टी सीमेंट वाले ने 50 बोरी सीमेंट का वादा किया है। नारे रिसालत। उनकी दुकान में, उनके कारोबार में गौसे पाक के सदके बेपनाह बरकत होता। माशाअल्लाह, जो लोग अगर कैश नहीं दे सकते हैं वो आकर के मौलाना अव्वल साहब के पास अपना नाम दर्ज करवा लें। इन औलमा किराम की मौजूदगी में, काज़ी सीमांचल की मौजूदगी में, यकीन जान लीजिए खलीफा सरकार ताजुश शरिया जिन्होंने बहुत करीब से सरकार ताजुश शरिया के जलवे का मुशाहिदा किए हैं और जो हमारे सीमांचल के लिए एक बहुत बड़े सरमाया है, जिनके दिलों में कौम का दर्द है, जो हमेशा कौम के लिए मुतमक्किन रहा करते हैं। हज़रत काज़ी सीमांचल की मौजूदगी में आप जो है अपना नाम दर्ज फरमाएं और ये यकीन दिलाएं कि आज हम जलसा वाले अगर 1 लाख का जलसा कराना जानते हैं तो हम जलसा के लोग अपने गांव में खूबसूरत मस्जिद। इसलिए मेरे प्यारे जो लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद उलमा मेरे उस्ताद गिरामी वकार अल्लामा अब्दुल जलाल साहब ने 2000 रुपये 200 रुपये दिए। अल्लाह को मौलाना अब्दुल जलील साहब किबला जिन्होंने 200 रुपए से जो है मस्जिद में ताउन पेश किए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस 200 रुपए की बरकत से, इस ताउन की बरकत से अल्लाह ताला उनके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें नाज़िल अता फरमाए। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, कोई और साहब है जो लिखवाना चाहते हैं वो 1 ट्राली बालू ही लिखवा दें, वो 1 ट्राली गिट्टी ही लिखवा दें। किसी साहब को अगर तौफीक हो वो 1 ट्राली ईंट ही लिख दे। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हजरत मौलाना अव्वल रज़ा मैकस साहब मुझे एक रिवायत बहुत जो है यानी करीब से मैं इन तमामी लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। हजरत एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो बिलग्राम शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उस बुजुर्ग के पास एक शख्स आते हैं और आने के बाद कहते हैं हुजूर आखिर वजह क्या है, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। जब जब मैं मौत के बारे में सोचता हूँ कि मौत से मुझे इतना डर लगता है कि मौत के बारे में जब मैं सोचता हूँ फिर जो है मेरे अंदर खौफ तारी होने के बाद बड़ी बेचैनी सी हम यानी बड़े बेचैन से हम हो जाते हैं, बड़े बेकरार हो जाते हैं। हुजूर कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए, हुजूर कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए जिस वजीफे की वजह से हमारे दिलों से मौत का डर न हो बल्कि हमारे दिलों में मौत का शौक पैदा हो जाए। हम जो है मौत से डरे नहीं बल्कि जल्दी से मरना चाहें। हजरात वो बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्ग रहते हैं, वो आखिर आज के जमाने की पीर की तरह नहीं कि किसी के पास आए वजीफा बताने के लिए हम उनको अमलियाती एतबार से करीब नहीं करेंगे, भले उन्हें जो है हम एक तावीज के जरिए कह देंगे कि जाओ तेरा काम हो जाए। सरकार ताजुश शरिया के पास अगर कोई साहब आते थे कि हजरत मैं बड़ा परेशान हो रहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, सरकार ताजुश शरिया फरमाते थे कि तुम रात में मुसल्ला बिछा करके अपने रब से रो रो करके बातें करने की कोशिश करना और अपने फरियाद को सुनाने की कोशिश करना। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तेरे मुश्किल को आसान कर देगा। तो पीर ऐसे होते हैं जो उनको अमलियाती जिंदगी से भी करीब करे, उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने के असरात में दाखिल करे। हजरात यकीन जान लीजिए वो बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा है
कि तुम्हारे जेब के क्या हालात हैं, तुम पैसे के एतबार से कैसे हो। वो कहता है हुजूर पैसे में तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, यकीन पैसे में मैं तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, बहुत खुशहाल हूँ। हजरात वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा है कि तुम जो है रोजाना चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, अल्लाह की राह में सदका दिया करो, अल्लाह की राह में सदका दिया करो। चूंकि वो पीरे कामिल थे, बुजुर्ग कामिल थे, उनकी बात मान करके वो अपने घर लौटते हैं, रोजाना कुछ रुपए अल्लाह की बारगाह में सदका करते हैं। कुछ दिनों के बाद शेख कामिल से जब मुलाकात होती है, कहते हैं हुजूर आखिर आपने क्या कह दिया है, आखिर आपने क्या कह दिया है, जहां मुझे मौत से डर लगता था अब तो मुझे मरने की तबीयत कर रही है, अब तो मेरी तबीयत मरने को है हुजूर, अब तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मर जाऊं, जल्दी से मौत आ जाए, हुजूर आखिर आपने क्या कर दिया है। तब वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा है जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ जिसका मकान होता है, जहाँ जिसका घर होता है, जिस घर में बेहतर इंतजाम होते हैं, वहाँ जो है वो रहने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसकी रहने की तबीयत लगती है। तुम्हारे आखिरत में तुम्हारे लिए कोई महल नहीं था, लेकिन तुमने अल्लाह की राह में सदका दे करके आखिरत में अपना घर बना लिया है, आखिरत में तुमने अपने महल को तैयार कर लिया है। तो जहाँ जिसका महल होता है वहाँ उसके जाने की तबीयत होती है, तुमने आखिरत में अपने लिए महल तैयार कर लिया है, इसलिए अपने उस महल में जाने की तुम्हारी तबीयत कर रही है। इसलिए मेरे प्यारे हम जो है अल्लाह के घर के लिए हम जो है अल्लाह के घर के लिए माशाअल्लाह एक साहब 300 रुपए मैं आखिरी ऐलान 2-4 मिनट के अंदर करके आपके बीच से रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि काजी सीमांचल की आमद होनी है, काजी सीमांचल का खिताब होना है। हजरात कोई ऐसे साहब हैं, कितने सरमायादार हजरात ऐसे हैं, यकीन जान लीजिए समाज में तो ऐसे पैसे देखने वाले को मिलते हैं जो यकीनन कहा करते हैं कि तेरे सामने मेरी औकात, मेरे सामने तेरी औकात क्या है, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ। मेरे प्यारे पैसा वाला होना ये जमाने को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो यकीन जान लीजिए वो वाला किरदार अदा कीजिए कि हजरत उस्मान गनी से जब इस्लाम के यानी नशर इशाअत के लिए, इस्लाम के तबलीग के लिए, जहां इस्लाम के लिए उनके माल की जब जरूरत पड़ी तो जहां जैसे उनसे सवाल किया गया, हजरत उस्मान गनी अपने सारे माल को राहे खुदा में वक्फ कर देते हैं। इसलिए आज कुछ ऐसे यानी 2-4 ऐसे नौजवान की जरूरत है। अभी एक साहब ने 50 बोरी सीमेंट का जो है वादा किया है, यकीन जान लीजिए जिन्होंने अल्लाह के घर के लिए देने का वादा किया है तो यकीन जान लीजिए वो जरूर देंगे। कोई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के घर के तामीर के लिए एक टाली सीमेंट, एक टाली जो है बालू या एक टाली गिट्टी या एक टाली ईंट जो है देने के लिए तैयार हो जाए। कोई ऐसे लोग हैं जो देने के लिए तैयार हो जाए, आज नहीं देना है, जब आपके पास हो जाए तो आप जो है मस्जिद कमेटी से मुलाकात करेंगे, मस्जिद कमेटी से मुलाकात करने के बाद आप जब उनकी जरूरत के वक्त पहुंचा देंगे तो मस्जिद का काम हो जाएगा। यकीन जान लीजिए पूरे मजमे में कोई ऐसा नहीं है। माशाअल्लाह 100 रुपए से और एक भाई साहब ताउन किए हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला उनको रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात मैं कहना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात जल्द से जल्द अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी जगह से उठ जाए और आने के बाद मस्जिद को ताउन पेश करें। अच्छा अगर 1100 रुपए आपके पास नहीं है तो 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जिनके पास हो जल्दी से वो आए और मस्जिद के तामीर में हिस्सा लें। यकीन जान लीजिए अगर आप सच्चे दिल से देते हैं तो आपके 50 रुपए को नहीं देखा जाएगा। अगर आप अल्लाह के घर के तामीर के लिए 1 रुपए भी सच्चे दिल से देते हैं, इधर आप 1 रुपए देंगे, अल्लाह करोड़ों का सवाब आपको अता फरमाएगा। जिनके पास इतना जो बुद्धि है वो अल्लाह के घर के तामीर के लिए दे दे, अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाएगा। आ जाए भाई जल्दी आ जाए, जिनके पास जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जिनसे जो हो सके आप अल्लाह के घर के तामीर के लिए, अल्लाह के घर के तामीर के लिए हिस्सा लें। पैसा उन्होंने 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल अता फरमाए। हजरात मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया है जिससे जो कुछ बने फटाफट ये काम कीजिए। काजी सीमांचल की आमद है, सुभान अल्लाह। एक चचा ने 100 रुपए दिया, 250 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 100 रुपए दिया, अल्लाह दोनों जहान की नियामतों से मालामाल फरमाए। एक भाई ने 50 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए मेरे भाई। एक चचा हमारे 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए।
جن کو جو دینا ہے وہ آ کر کے جلدی سے دے دیں. حضرت مولانا اول رضا صاحب آپ بڑھ جائیں. جن کو جو دینا ہے جلدی سے آ کے دے دیں, جلدی سے آ کے دے دیں, تاکہ جلدی سے قاضی سیمانچل حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صدیقی صاحب کی تقریر ہو جائے, ان کا عمدہ پیغام آپ کے بیچ نشر ہو جائے. اس لیے جن کو دینا ہے وہ جلدی سے آ جائے. کمیٹی کے حضرات ہماری ادھر مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں, اگر وہ چاہیں تو کسی بچے کے ذریعے رومال بھجوا کر کے ان سے بھی اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے لے سکتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی دل کھول کر کے اللہ کے گھر کے تعمیر میں حصہ لیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا انہیں دارین کی سعادت مندی نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے. 1 گھنٹہ کے قریب میرا خطاب آپ کے بیچ ہو چکا, 1 گھنٹہ کے قریب میں آپ کا وقت لے چکا. میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد بابل صاحب نے مسجد کی تعمیر کے لیے 1 ٹرالی بالو. سبحان اللہ, میں نعرہ لگاتا ہوں, ذرا نعرے کا جواب دیجیے تاکہ جو لوگ اگر اب بھی دینا چاہتے ہیں وہ اٹھ کر کے یہاں لکھوا دیں. نعرہ تکبیر. ارے بھائی پیسہ نہیں دیں گے تو نعرے کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ابھی اگر یعنی 2 منزلہ مکان بنانے کی باری آئے تو وہاں آٹومیٹک پیسہ ہمارے جیب سے نکلنے لگے گا, لیکن یہاں اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے مانگا جا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے مفلس ہم ہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم مفلسی کے شکار ہو جائیں, اللہ کرے کہ آپ خوب ترقی حاصل کریں, لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ سے مانگا جا رہا ہے. کسی جلسہ یا کوئی قوالی یا کسی اور فضول کام کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے گھر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا علاء الدین صاحب علی رحمہ کے نام پر ان کے بیٹا ڈاکٹر اظہار صاحب نے پھر 1000 روپے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ جو لوگ یعنی وعدہ کر رہے ہیں ان کا نام لکھ لیں تاکہ جو ہے بعد میں آپ بھول نہ جائیں پھر کوئی. نعرہ تکبیر. محمد سجاد صاحب نے اپنے باپ کے نام پر 1000 دیا, اللہ قبول فرمائے. ان کے والد کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی جن سے جو ہو سکا آپ نے دل امی کے ساتھ حصہ لیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس جناب محترم فیروز صاحب نے 1 کلو بالو دیا ہے, اللہ قبول فرمائے. لکھیے 1 کلو بالو لکھیے. آئیں گے لوگ, آئیں گے. محمد فیروز صاحب 1 کلو بالو, محمد بابل صاحب 1 کلو بالو. بہت دیر سے آئیں گے مولانا اول صاحب. میں پھر یہ ادھورا کام قاضی سیمانچل جناب حضور مفتی زبیر عالم صدیقی کے حوالے کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ حضور والا اپنے زبان مبارک سے اگر ان تمام لوگوں کے بیچ اپنے زبان مبارک سے کچھ فرمائیں گے تو امید ہے جو سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور مسجد کے کام میں حصہ لیں گے. وہ 1 ٹالی بالو یا اینٹ یا جو ہے سیمنٹ کی شکل میں, جن سے جو ہو سکے آپ جلدی سے آئیں بغیر کسی نعت خوانی کے. اب جلد سے جلد حضرت یعنی بغیر شہادت بھائی ہے نا, 1 کلام کے لیے شہادت بھائی آ رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آپ سب کا دینا ہم سب کا لینا اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.